नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में बीदर जिला गोंडा कर्मचारी संघ की ओर से सम्मान समारोह किया गया आयोजित। प्रसिद्ध अतिथियों का किया गया सम्मान। बीदर की सविता समाज की छात्र कुमारी साक्षी के एसएसएलसी परीक्षा में कर्नाटक में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर सम्मान समारोह किया गया आयोजित। बेंगलुरु में टोपी के खिलाफ विवाद। हिंदू कर्मचारियों के एक समूह ने मुस्लिम कर्मचारियों की टोपी पहनने पर जताई आपत्ति। टोपी के विरोध में पहना भगवा शॉल। गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। 25 सीटों पर होगी नजर। सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम ने देश के सरपंचों को लिखा पत्र। कई अहम मुद्दों पर मांगा सहयोग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय गोंडा आदिवासी संघ नई दिल्ली की राज्य इकाई बीदर जिला गोंडा कर्मचारी संघ की ओर से आज रविवार 12 जून को डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में बधाई समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सभापति विधान परिषद कर्नाटक सरकार रघुनाथ मलकापुरे, पूर्व सचिव उपनायिका जेडीएस और पार्टी के कोर कमेटी सदस्य बंडप्पा खाशमपुर और प्रधान कार्यदर्शी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बीदर गीता पंडित राव चिट्टा को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता अखिल भारतीय गोंडा आदिवासी संघ कर्नाटक के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मेट्री ने की, जबकि कई प्रसिद्ध अतिथिगण उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मनखेली ग्राम के पूर्व अध्यक्ष सैयद सलाम पाशा ने भी इन तीनों अतिथियों का सम्मान किया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। मत यारे कानो खबर इल्दब्लेने सभापति ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ರು, ಹೊಸ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಹಂಗಾಮಿ ಏನದ, ಇದು ಅದು ಹಂಗಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರೇ ಅದು। ಹಂಗಾಮಿ ಸೆಗ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹರ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಹರ। ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು, ಆ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಿಂತಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। ಮೊನ್ನಂತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಹಾಗೂ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, ಇಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳಬೇಕಾದ್ರೂ ತಮ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಮಾಜದ್ದು। ಅದರಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತದಿಂದ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಹಾನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಣ್ಣವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮ ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಅಣ್ಣವರು ನನಗೇನು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿ ಇವ್ರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ನಾವು ಸಮಾಜದಾಗ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ। ಅದೇ ಥರ
ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಪೆನ್ನು ನನಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ. बीदर जिला सविता भवन में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसएसएलसी परीक्षा में 625 में से 624 अंक ले चुकी सविता समाज की कुमारी साक्षी पिता चंद्रकांत, विद्यार्थिनी राव बहादुर महाबलेश्वर गुरुकुल मैलूर बीदर इस हाई स्कूल में कर्नाटका स्टेट में दूसरा रैंक प्राप्त कर चुकी है। इस संबंध में बीदर जिला सविता समाज की तरफ से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उमेश सोरालीकर, विश्वनाथ पुलकुर्तीकर, अंबादास डोंगरगीकर, जिला सविता समाज महासचिव शिव कुमार शाहपुरे, नगर सचिव विजय लक्ष्मी सेन, महिला अध्यक्ष सभी उपस्थित रहे। ಈ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ, ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಅವರಿಬ್ಬರು. ಅವರಿರೋದಲ್ಲಿ ನನಗೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಚಪಾಯಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿನಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜವರು ನನ್ನಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನಂಥ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಷ್ಟು ಗೌರವ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. धन्यवाद। अष्टुर में एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई। अष्टुर के निवासी अंबुजी जो अपनी बाइक पर अस्पताल जा रहे थे कि सामने से एक तेज रफ्तार टिप्पर के नीचे आ गए, जिसके कारण अंबुजी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति अंबुजी सेंटरिंग का काम करता था। इस दर्दनाक घटने में मृतक की बाइक बुरी तरह से खराब हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर पीडब्ल्यूडी को इसका जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि इस सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर न होने के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मृतक के भाई संजू और दूसरों ने घटना स्थल पर मौजूद केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान को इस संबंध में बताया। अंबुजी तो क्या काम करते थे वो? उन्हें किलो का काम कर रहे थे सेंटरिंग। कहाँ जा रहे थे उन्हें ऐसा आ रहा था, इन्हें ऐसा नहीं, मतलब जा रहे थे कहाँ वो? उन्हें बीबी में मेरे भाभी को लाने को हॉस्पिटल जा रहा था। हॉस्पिटल जा रहे थे क्या? कब हुआ ये एक्सीडेंट? भाई कल मेरी मीटिंग से सो गया 3 साढ़े 3 4 बजे ऐसा हुआ एक्सीडेंट। अब हम सर्कल साहब से बात करें तो सर्कल साहब बोल रहे हैं हम पीडब्ल्यूडी 2 महीने पहले पीडब्ल्यूडी वालों को लेटर दे दी। उनका हर काम ऐसी पीडब्ल्यूडी वालों का हर काम ऐसी, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए पक्का। और आज जो मरने का कारण है पीडब्ल्यूडी, अगर स्पीड ब्रेकर होता तो उन्हें अपनी जगह सिलो आते थे, उन्हें अपनी जगह सिलो जाते थे, ये हादसा नहीं होता था। ये अंबाजी साहब जो हमारे अष्टुर के कोली समाज के मरे, ये पीडब्ल्यूडी की बदौलत। अब पुलिस डिपार्टमेंट तो साहब बोल रहे हैं हम 2 महीने पहले का आपको लेटर दे देती बोल को बोल रहे हैं। अब अगर पीडब्ल्यूडी वाले एक्शन नहीं लिए बोलो तो फिर हम लोग खुद यहाँ पर, हमारा रमेश पटेल है, हमारे अष्टुर के लोग हैं, बहुत सारे आदमियाँ हैं, पूरे जने मिलके तादलापुर वालदोडी अष्टुर सब मिलके यहाँ पर स्पीड ब्रेकर पुलिस वालों से कापी लेके हम खुद डालेंगे। कर्नाटका में जहां हिजाब का मुद्दा ठंडा होता दिख रहा है, वहीं अब ऐसा लगता है कि भगवा शॉल बनाम टोपी का मुद्दा राज्य में बढ़ रहा है और राज्य के स्वामित्व वाली बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हिंदू कर्मचारियों के एक समूह ने मुस्लिम कर्मचारियों के टोपी पहनकर काम करने पर आपत्ति जताते हुए भगवा शॉल पहनकर काम पर आ रहे हैं। हिजाब को लेकर राज्य में अशांति के बाद हिंदू कर्मचारियों ने अब अपने मुस्लिम सहयोगियों द्वारा टोपी पहनने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि
यह बीएमटीसी द्वारा निर्धारित वर्दी नियमों का उल्लंघन है। बीएमटीसी अपने कर्मचारियों के लिए वर्दी निर्धारित करता है। हालांकि काम के घंटों के दौरान टोपी पहनने वाले मुस्लिम कर्मचारियों ने अपनी टोपी उतारने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद हिंदू कर्मचारी टोपी के बजाय भगवा शॉल पहनकर आने लगे। उन्होंने केसरी कर्मचारी संघ नामक एक संघ भी बनाया है, जिसका उद्देश्य बीएमटीसी में समान सख्त नियम लागू करना और टोपी पहनने से रोकना है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद और सूरत में नगर निगम चुनाव के बाद से एआईएमआईएम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात के भुज में ओवैसी ने कहा, हम गुजरात विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। हालांकि हमने अभी ये तय नहीं किया है कि कितनी सीटों पर लड़ना है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि वे पार्टी को मजबूत करने के इरादे से गुजरात आए हैं। उन्होंने कहा, हमारा उम्मीदवार भी भुज से खड़ा होगा। बता दें कि राज्य के 182 विधानसभा सीटों में से 25 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता किसी भी राजनीतिक पार्टी का खेल बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। अहमदाबाद, पंचमहल, खेड़ा, आनंद, भरूच, साबरकांठा, जामनगर, जूनागढ़, नवासारी इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं का खास प्रभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में भारत ने ग्राम स्वराज और पंचायतों के सशक्तिकरण में नए मुकाम हासिल किए हैं। उन्होंने देश भर में गांवों के सरपंचों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के 100% लक्ष्य हासिल करने, जल संरक्षण करने और आने वाले योग दिवस को विशेष बनाने का आह्वान भी किया है। सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के कुछ दिनों बाद देश भर में सरपंचों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों का उल्लेख किया और उनसे उन पर सहयोग मांगा। साथ ही उन्होंने पिछले 8 सालों में उनके योगदान की सराहना भी की। उन्होंने सरपंचों से कहा कि वे 21 जून को मनाए जाने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विशेष बनाएं और अपने अपने गाँव में सभी को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने आग्रह किया कि वे योग के लिए अपने गांव के किसी भी प्राचीन या पर्यटन स्थल या क्षेत्र में कहीं भी तालाब या जल निकाय का चयन करें और सभी को इसमें शामिल करें। साथ ही उन्होंने इसकी तस्वीरें भी साझा करने का अनुरोध किया है ताकि अन्य लोगों को उससे प्रेरणा मिले। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण आज गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसके बारे में जानकारी दी है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। सोनिया गांधी हाल के दिनों में ही कोरोना संक्रमित हुई थी, जिसके बाद से वह धीरे धीरे रिकवर हो रही थी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आज उनको सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग,
हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। गुजरात के आणंद जिले में सांप्रदायिक झड़प में पुलिस कांस्टेबल और 3 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोरसद कस्बे में शनिवार रात एक विवादित भूखंड पर ईंटें बिछाने के मामले में हुए संघर्ष में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपाधीक्षक DR पटेल ने बताया कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के करीब 50 गोले छोड़े और रबर की 30 गोलियां दागी। उन्होंने कहा कि कस्बे में भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके बाद से स्थिति नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश के भोपाल के TT नगर थाना क्षेत्र में बीते 9 जून की शाम रोशनपुरा चौराहे के पास महिला के साथ मारपीट और पेपर कटर से चेहरे पर वार करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवाजी नगर स्थित सीमा के निवास जाकर उससे भेंट की और हालचाल पूछा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घायल महिला को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि सीमा का साहस सराहनीय है। उसने बदमाशों की आपत्तिजनक हरकत पर हिम्मत से उनका मुकाबला किया। राज्य शासन द्वारा सीमा का उपचार कराया जाएगा। हर मुसलमान का यह ख्वाब होता है कि वह अपनी जिंदगी में एक बार हज पर जरूर जाए। इस्लाम में भी हज को जरूरी बताया गया है। उनकी इसी चाहत के चलते कई बार कुछ लोग हज करने के लिए कठिन से कठिन राह पर कठिन काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसका अंदाजा हाल ही में वायरल हुए इस वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें एक अफगानी शख्स को साइकिल पर सवार होकर हज यात्रा के लिए जाते देखा जा सकता है।
वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम नूर अहमद बताया जा रहा है, जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नूर अहमद एक प्रेरणा के तौर पर देखे जा रहे हैं। उनके इस जज्बे को देखकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। बताया जा रहा है कि नूर अहमद ने हज यात्रा करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। बता दें कि अफगानिस्तान से सऊदी अरब का रास्ता 4,500 किलोमीटर से भी लंबा है। इतने लंबे रास्ते को साइकिल से पार करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। देश की टॉप फैशन डिजाइनर्स में से एक प्रत्युषा गरिमेला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शनिवार को तेलंगाना के बंजारा हिल्स अपार्टमेंट में वह मृत पाई गई। प्रत्युषा गरिमेला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने उनके बेडरूम से जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर बरामद किया है। बंजारा हिल्स में सर्कल इंस्पेक्टर ने संदिग्ध हालत में मौत का केस दर्ज किया। उनकी मौत की जानकारी उनके परिवार को दे दी गई है। फिल्म मेकर अहमद खान एक फिल्म लेकर आने वाले हैं। ये एक एक्शन फिल्म होगी। इस फिल्म में 80 दशक के बेस्ट एक्शन स्टार्स एक साथ नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ एक साथ एक्शन करते नजर आएंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग मुंबई स्टूडियो सहित कई लोकेशंस पर की जाएगी। फिल्म में इन स्टार्स को इसलिए कास्ट किया जा रहा है क्योंकि इन सभी स्टार्स को इनकी एक्शन फिल्म के लिए जाना जाता है। वही इस फिल्म में भी ये सभी स्टार्स एक्शन करते नजर आ सकते हैं। वही इस फिल्म को लेकर मेकर्स भी काफी एक्साइटेड हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में बीदर जिला गोंडा कर्मचारी संघ की ओर से सम्मान समारोह किया गया आयोजित। प्रसिद्ध अतिथियों का किया गया सम्मान। बीदर की सविता समाज की छात्र कुमारी साक्षी के एसएसएलसी परीक्षा में कर्नाटक में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर सम्मान समारोह किया गया आयोजित। बेंगलुरु में टोपी के खिलाफ विवाद। हिंदू कर्मचारियों के एक समूह ने मुस्लिम कर्मचारियों की टोपी पहनने पर जताई आपत्ति। टोपी के विरोध में पहना भगवा शॉल। गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ेगी ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम। 25 सीटों पर होगी नजर। सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम ने देश के सरपंचों को लिखा पत्र। कई अहम मुद्दों पर मांगा सहयोग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोविड से संबंधित समस्याओं के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।